यह प्रशस्ति पत्र पढ़ना चाहूंगी Adigadi Medical College and Ujjain Charitable Trust and Research Center. We are honored to felicitate Dr. Vinod Diwan, who is one of the founder member of Ujjain Charitable Trust Hospital and Research Center and is associated since the very first conceptual meeting for establishing the trust in 1986. He is a world-renowned researcher and teacher. His research work and students are spread over in more than 65 countries. He has been Professor of Epidemiology and Global Health of Karolinska Institute, Stockholm for last 40 years. He was President of International Center for Health Research at Karolinska Institute for a decade. He is visiting professor to many universities and advisor to many governments and institutions. He has published more than 350 research papers. At Adigadi Medical College, he has been the main architect of the research work and has brought many coveted research projects to the institution. He has the credit of bringing Adigadi Medical College in the world research map. He is originator of many good ideas implemented here, which makes Adigadi Medical College outstanding institution in India and world over and made it. We salute to his outstanding contribution to the institution and world over, and we wish him a long, healthy and happy life. अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर नरेंद्र दत्त गार्गव सर को मंच पर। मैं सर का प्रशस्ति पत्र पढ़ती हूं। Adigadi Medical College and Ujjain Charitable Trust Hospital and Research Center, we are honored to felicitate Dr. Narendra Dutt Gargav, who has been one of the foundation stone of Adigadi Medical College, on whose shoulder Adigadi Medical College stands but is not visible. Sir, please. He has a built in nature to help anybody who comes to him. His house has been a Makkah to the thousands of people. His friends are spread in each town of India. जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। He has mentored many of them. His passion is to fund students for studies. He has been a Karanhar to Adigadi Medical College in many critical situations. His ideas and ethics make Adigadi Medical College outshine. We salute to his outstanding contribution to Adigadi Medical College and society at large and wish him success in his new endeavor and happy, healthy, long life. अब इसके बाद अब मैं परम आदरणीय हम सबके प्रेरणा स्रोत प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी से पूरे आदर और सम्मान के साथ निवेदन करती हूं कि आदिगादी मेडिकल कॉलेज की रजत जयंती समारोह के अवसर पर आशीर्वचन से हमें करताप करें। जोरदार तालियां हो जाए। आदिगादी मेडिकल कॉलेज के रजत जयंती समारोह और कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे सबके नेता माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी, आपको प्रणाम करता हूं और आप सबको भी प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान डॉक्टर कुमार प्रभास, विभाग अध्यक्ष ऑन्कोलॉजी, टाटा मेमोरियल मुंबई, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत। डॉक्टर मिलिंद सिरालकर जी, डॉक्टर महाडिक साहब, डॉक्टर सुधीर गवारीकर जी, सच में जिस स्थान पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, यह हमारा उज्जैन का दिल्ली दरवाजे के बाद का एक आगर रोड का हिस्सा। इस आदिगादी मेडिकल कॉलेज के पहले ऐसा माना जाता है कि थोड़ा वीरान था, सुनसान था, आबाद होने में कमी थी, लेकिन बाबा महाकाल की कृपा से सबसे ज्यादा चैतन्य अगर कोई इलाका हुआ तो ये आदिगादी मेडिकल कॉलेज का कैंपस हुआ है। इसका एहसास, इसका आनंद हमारे अपने राज्य में तो हुआ ही, लेकिन मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री में मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहला मेडिकल कॉलेज बनने का गौरव अगर कहीं मिला है तो इसी संस्थान को मिला है। ये एक शुभ संकल्प के बलबूते पर अपनी राह बनाने वाला अपने आप में एक संस्थान बना, वो भी उस चुनौती के दौर में
जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के लेकर के सरकार उहापोह में रहती थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोलते नहीं है, प्राइवेट को अनुमति देते नहीं है। ऐसे दौर के समय प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपने बलबूते पे खड़ा हो जाए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, थोड़ा वो बड़ा समय कठिन था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के इतने सारे बंधन, पता नहीं कौन से जमाने की बातें थी, कैसी थी, जो भी थी, जो होगी, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एनएमसी के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो सारे बंधन हटा दिए, वो सारी चीजें हटा दी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इतना तंग करते थे, एक तरफ इतनी बड़ी आबादी का देश, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए इतना अच्छा खुला आसमान और पता नहीं कितने बंधन लगा देते थे। और उसका परिणाम क्या आया? उसका परिणाम आया बड़े पैमाने पे झोला छाप डॉक्टरों की भीड़, जो जिसके लायक उनको मौका नहीं देना, दूसरी तरफ अवॉइड करके बैठना। ये मित्रों, मैं आपके साथ इसलिए चर्चा कर सकता हूं कि ये आज जिस सभागार की हम बात कर रहे हैं, ये सभागार ऐसे विचारों के आरोह अवरोह, इनकी प्रभावों के माध्यम से, धाराओं के माध्यम से हम अपने इन सारी गहराई को भी समझेंगे, जिसमें कल हमारे यहां बैठे हुए अधिकांश डॉक्टरों को अपने जीवन के भविष्य के सपनों की उड़ान के साथ जब बढ़ने के लिए मौका मिलेगा, तो मुझे प्रसन्नता होगी कि दुनिया का सबसे युवा देश सबसे सही दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता दिखाई देगा। मैं आपको बधाई दे रहा हूं इस नाते से। अब कितना हमारी सरकार ने भी इन सारी चुनौतियों के बीच में, मुझे मालूम है कि हमारे अपने राज्य के अंदर, अब दुनिया के अंदर तो आप देखो कई देशों की इकोनॉमी, तो चाहे कजाकिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, कौन कौन से स्थान है मालूम नहीं, लेकिन सारे के सारे धंधा चला रहे, वो मर्जी आए जो कर रहे हैं। हमारे योग्य डॉक्टर नहीं बन पा रहे। क्यों? कारण क्या? कारण उतना ही कि केवल उसके पीछे का दृष्टिकोण की कमियां थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज के दौर में मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प लिया और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें इस बात का आनंद, लगातार एक के बाद एक पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, फुल फ्लेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और ये तो पवित्र काम है। सच में आपके हाथ में, हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन चिकित्सक के रूप में पड़ने वाली बीमारी में जब डॉक्टर का हाथ मरीज के हाथ में जाता है, तो एक तरह से भगवान का हाथ दिखाई देता है और उसको जीवन मिल जाता है, आनंद हमको आता है। अपन कोई किसी से अगर कहे कि आओ आपका अंगदान कर दो, तो अंगदान में वो पूरा चमक जाएगा। अंगदान कोई करता है क्या? लेकिन डॉक्टर और मरीज का भरोसा ऐसा है कि अंगदान तो छोड़ो, वो मर्जी आए जो शरीर के साथ करे, पूरा तौर पे भरोसे के साथ, विश्वास का नाम डॉक्टर है। हमें इस बात का गर्व है और ये लंबे समय की गौरवशाली परंपरा। उज्जैन तो धन्वंतरी के काल के समय से, उज्जैन की चिकित्सा प्रणाली अतीत के काल से बड़ी गौरवान्वित होने वाली रही होगी। हमारे यहां तो कहने के लिए लंबी बातें होगी, लेकिन उज्जैन के लिए सिंहस्थ के पहले एक इतना बड़ा ऑडिटोरियम जिसमें 1400 की क्षमता हो, मैं रजत जयंती को सार्थक मानता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस ट्रस्ट के लिए भी। और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपका उत्साह उमंग देख करके, आपके इस सभागार के माध्यम से डॉक्टर महाडिक साहब, आपको मैं बधाई देता हूं कि आपने अलग प्रकार से सारे ढंग से मेडिकल कॉलेज को खड़ा किया, लेकिन सिंहस्थ के पहले एक बड़ा सभागार देकर के यहां की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में बड़ी सौगात दी। मैं आपको इस नाते से भी बधाई देना चाहता हूं। आपके लिए यह बड़ी अभिनंदन की बात। स्वनाम धन्य हमारे बीच विद्वान भी बैठे हैं, अलग अलग प्रकार के पूरे देश के चिकित्सकों के बड़े सेमिनार करने के लिए बड़ा भवन, 9 अलग अलग प्रकार से, इसके साथ और भी कुछ भवन बनाए जिनका लाभ हमको मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको ये जरूर आश्वस्त करूंगा कि इसके साथ सरकार के लेवल पे आप कैलेंडर बना करके चाहेंगे कि हमारे इस सभागार के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय के आधार पर आप कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित करें,
तो मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़े होकर के हमारे युवाओं के लिए सभी प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए इस तरह से आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेगी, क्योंकि हमारी बनी हुई प्रॉपर्टियों का लाभ तो मिलना ही चाहिए। इन प्रॉपर्टियों का लाभ कब मिलेगा? जब व्यवस्थित कैलेंडर के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अब तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अभी अभी हमने अपने बाबा महाकाल के महालोक के समय पे भी लगातार निर्माण के बाद अब कैलेंडर बनाया पूरे साल के लिए भी कि एक साथ सरकार के माध्यम से जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो सभी प्रकार के केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से बात नहीं बनती, उसको जीवंत करने के लिए बाकी कार्यक्रमों की रचना भी होना चाहिए और उस प्रकार के कार्यक्रम जिसमें ज्ञानवर्धन भी हो, हमारे लिए दूसरे प्रकार का वर्तमान की जागृति का जिज्ञासा का समाधान भी हो और अच्छे कामों के प्रेरित करने का मौका भी मिले। ऐसे समय में जब मैं यहां मेडिकल कॉलेज के लिए आ रहा हूं तो इसी बीच मुझे थोड़ा सा एक दो चीज और भी जोड़ने की आवश्यकता है कि आज के साथ ही जिस प्रकार का समय चल रहा है उस समय के साथ मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारे मामलों में लगातार हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी नंबर 1 पे रख रही है। इसलिए मेरी सरकार के गठन के साथ ही हमने आमतौर पर दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता था, लेकिन हमारे अपने राज्य के अंदर ही गड़बड़ है। ऐसे कई जगह है, हेल्थ मिनिस्टर अलग, हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर अलग और हेल्थ डिपार्टमेंट अलग। क्यों मंत्रालय 2 होना चाहिए? अनावश्यक खर्चा क्यों होना चाहिए? हमने दोनों को मर्ज किया, एक ही किया है, क्योंकि इससे हमारा पैसा भी बचेगा और हमारे काम की गति भी बढ़ेगी। ऐसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर के भी हमारे जितने मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थियों के लिए आगे बढ़ने के लिए राज्य के अंदर जो विद्यार्थी नीट के माध्यम से क्लियर करना चाहते हैं, आपके लिए बताना चाह रहा हूं कि जिसमें भविष्य में भी जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पीजी या यूजी करना चाहते हैं, सरकार उसके पैसे भर के लोन देने को तैयार रहेगी ताकि वो पढ़े और आगे बढ़े, वो डॉक्टर बने। हमारे यहां हेल्थ की सुविधा के विस्तार के लिए तमाम प्रकार की सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि अगर पीजी आप कर रहे हैं और आपके पास कोई कारण से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले अपनी फीस बड़ी होती है, उसके जीवन में कठिनाई होती, योग्यता तो है लेकिन रेडियोलॉजी से लेकर ऐसे कई प्रकार के कोर्स है जिसमें पर्याप्त पैसा नहीं है, ऐसे में योग्य बच्चे को पढ़ने से वंचित होना पड़ता है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम उसको लोन देंगे, बाद में वो डॉक्टर बन जाए, 2, 3, 4, 5 साल वो सरकारी सर्विस करना चाहे सर्विस करे, वो अपने पैसे लौटा दे, जीवन भर वो डॉक्टर बन के अपने जीवन में आगे बढ़े और कुल मिलाकर के भारत की सेवा करे। इस भाव के आधार पर इसे कई कामों को अपने इसी राज्य के अंदर एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमारी सरकार ने पहली बार प्रारंभ की है। पूरे राज्य में, पूरे देश के अंदर एयर एम्बुलेंस आयुष्मान सेवा के माध्यम से अगर मरीज किसी हॉस्पिटल में इस क्रिटिकल पोजीशन में है कि उसको किसी बड़ी जगह ले जाना है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करेंगे, 1 रुपया नहीं लगेगा और संबंधित को किसी बड़ी जगह पहुंचाने के लिए हमारी सरकार तैयार रहेगी। राहगीर योजना के माध्यम से और एक योजना लागू की, हमने कहा कि किसी चौराहे पर या किसी रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण से वहां संबंधित की हालत खराब हो जाती, लोग पुलिस से बाकी चीजों से डरने के कारण से हाथ नहीं लगाते। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं, हमने तो कहा कि आप कोई भी घटना अगर घटती, भगवान न करे घटे, लेकिन दुर्घटना अगर घट गई तो ऐसे में उस मरीज को उठा करके आप कहीं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाओगे तो 1.5 लाख का इलाज तो उसका भी फ्री और 25,000 रुपये पहुंचाने वालों को भी हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। ये मानवता को स्थापित करने वाले भाव है। ऐसी कई योजनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज आपको भारी नहीं करूंगा, दिन भर हो गया आनंद के साथ करते हुए। तो आज के इस अवसर पर आपको इस रजत जयंती वर्ष के अवसर पर, और कितना सुंदर नाम दिया है, नाद ब्रह्म, इसी का शायद आपने जोड़ा है, मैं अभी पूरा पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन ये कन्वेंशन सेंटर की बड़ी सौगात की बधाई, रजत जयंती की बधाई। और आप अगली बार स्वर्ण जयंती मनाओ, तब भी बुलाओगे तो जरूर आएंगे। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने अपनी दूरदर्शी एवं प्रेरणादायी उद्बोधन से
हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। अब हम हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं, जिससे आडीगाडी मेडिकल कॉलेज रजत जयंती समारोह की स्मृतियां उनके पास सदैव बनी रहे। सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूं उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल के ट्रस्टी श्री राहुल मुथाजी को कि वे आवे और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर